Hello. In this session, we are going to discuss with the difference between JDK, JRE, and JVM. As we know, Java is a programming language, and after compilation, it has been executed with the help of our JVM, which actually provides Java runtime environment with the help of JDK, Java Development Kit. So for complete compilation of Java program, we need to understand the difference between these three elements: Java Development Kit, JRE, Java Runtime Environment, and JVM, that is Java Virtual Machine, so that we can understand what is the working of the whole complete compilation and execution of Java program in a system. So first we have to introduce Java Virtual Machine. It is an abstract machine or a virtual machine because it does not exist physically. If you say that JVM, I can find out JVM somewhere in your system, no, it is not possible because Java Virtual Machine एक virtual machine है, as the name is indicating. Virtual machine means which does not exist physically, but it provides runtime environment in Java in which Java bytecode gets executed in the native machine environment. For example, हम ये बात करते हैं कि जावा जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. कैसे वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है? वो जेवीएम के कारण ही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है. जावा वर्चुअल मशीन हमें रन टाइम पे जो भी मशीन के ऊपर हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसका मशीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है. So it is a very important part of our Java program execution. JVM, JRE, and JDK are the platform dependent because the configuration of each OS is different from each other. In JVM, JRE, and JDK, JVM is platform dependent because the configuration of each OS is different from each other. जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जेवीएम का स्ट्रक्चर होता है. चाहे हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करें या फिर हम वेब ब्राउजर के बारे में बात करें, क्योंकि हमारे पास दो तरीके के एप्लीकेशंस होते हैं जावा में, एप्लीकेशन एंड एप्लेट्स. एप्लीकेशन जो होते हैं वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस कहलाते हैं जो कि आपके सिस्टम पे रन करते हैं, एंड जो एप्लेट्स होते हैं वो आपके वेब ब्राउजर में एग्जीक्यूट होते हैं. तो जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं और जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो अपना जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करते हैं, और जावा वर्चुअल मशीन हमारे को रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है. तो हम कह सकते हैं कि जेवीएम जो होता है वो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, बट through Java runtime environment, it makes our Java programs independent of any platform. So JVM performs the following main task. जो मेजर टास्क है JVM के वो है लोड्स कोड को लोड करना, वेरीफाई करना, एग्जीक्यूट करना एंड रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. ये 3-4 चीजें हमारा JVM करता है. पहले तो जो मेमोरी होती है उसके अंदर कोड को लोड करेगा, वेरीफाई करेगा वेदर द कोड इज करेक्ट और नॉट, एंड देन एग्जीक्यूशन होगा. जब हम एग्जीक्यूट करते हैं java.exe के थ्रू, जब हमारा बाइट कोड क्रिएट हो जाता है तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करा जाता है और उसके बाद ये सारा प्रोसेस जो होता है वो रन टाइम एनवायरनमेंट के थ्रू होता है जो कि जेवीएम प्रोवाइड करती है. सो what is Java runtime environment now? It is also known as Java RTE. In some books or some websites आपको Java RTE के नाम से भी मिलेगा. That is also is same thing. We are talking about the Java runtime environment only, JRE, which is a set of software tools used for developing Java application. It provides the runtime environment, means implementation of JVM. It physically exists in the form of libraries plus other files that JVM uses at runtime. So if you can see the picture, this picture, it's complete as a JRE, means Java runtime environment, which consists of JVM plus some set of libraries which are called as a jar file and some other files library. जैसे कि C and C++ में हमारी
iostream.h, stdio.h, इस टाइप की फाइल्स होती हैं। ऐसी लाइब्रेरी फाइल्स को जो हमारी जावा में यूज होती है उनको हम जार फाइल बोलते हैं। .जार, JAR, दैट इज एन एक्सटेंशन। जार फाइल्स जो होती हैं वो हमारी लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं। तो वो सारी लाइब्रेरी फाइल्स एंड JVM, ये दोनों मिल के हमारा JRE क्रिएट करते हैं। नाउ जावा डेवलपमेंट किट, ये हमारी किट है जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स हैं, कुछ फाइल्स हैं, कुछ टूल्स हैं जो कि हमारे यूज किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ आवर जावा प्रोग्राम। सो JDK is a software development environment which is used to develop Java applications and applets. It physically exists, it contains JRE plus development tool. So in the previous slide we had seen that JRE, which consists of JVM and some set of libraries and other files also. But in JDK, what we include JRE as well as JVM. JRE, of course, this is the JRE. This is the previous one structure. If we talk about the half of this is a JVM structure, and this actually JRE, which we had seen into this figure, JRE plus development tools like Java-C and Java, that combined make a JDK. So JDK, Java Development Kit, so we can create application or applet also. ये physically exist करती है, जैसा कि हमने previous videos के अंदर देखा, JDK का path हम set करते हैं, जिसके कारण हमारे को जावा सी और जावा कंपाइलर मिलता है। उसके लिए हमारे को पाथ सेट करना पड़ता है। ये हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखिए। अगर किसी को जावा का पाथ सेट करना होता है, जेडीके का पाथ सेट करना होता है, या जेडीके का डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, तो वो कैसे करना है उसकी हमारी वीडियोस हैं। उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसको देख के उसके बाद जावा को पहले जावा इंस्टॉल करते हैं हम जावा डेवलपमेंट किट के थ्रू, और आपको उसका पाथ सेट करना होता है कंपाइलेशन के लिए, ताकि आपको जावा डेवलपमेंट किट के साथ JRE प्लस उसकी जो टूल्स होते हैं वो मिल जाए। JDK is an implementation of any one of the below given Java platform released by the Oracle Corporation. So standard edition Java platform, जिसके अंदर हम core Java programming करते हैं। Enterprise edition Java platform, ये हमारा advanced Java के लिए बात करते हैं, जिसमें servlets और enterprise Java beans, these all are things comes into the EE edition of Java. So if you download the NetBeans or any other ID software, तो उसके अंदर आपको ध्यान रखना होता है कि आप उसके अंदर कौन सा प्लेटफॉर्म यूज करें। एंड माइक्रो एडिशन इज यूज फॉर स्मॉल एप्स प्रोग्रामिंग, लाइक स्मॉल डिवाइस प्रोग्रामिंग। जैसे कि आप ऐप बनाते हो तो उसके लिए अब जैसे एक्लिप्स है, एक्लिप्स एक ID है, वो उसके लिए 3 अलग अलग एडिशंस आपके पास आते हैं। एक SE होता है, एक EE होता है और एक ME होता है। ये सारे एडिशंस आपके नेटबीन्स के लिए भी अवेलेबल होते हैं। तो जो भी हम यूज करना चाहते हैं ID, वो ID के लिए अलग अलग JDK इंस्टॉल होती है। The JDK contains a private Java virtual machine and a few other resources such as the interpreter, loader, Java, a compiler, Java-C, a archiver jar, a documentation generator, Java doc, etc. to complete the development of a Java application. अगर आप लोगों ने अगर JDK डाउनलोड कर ली है तो, या जावा डाउनलोड किया है, तो आप जब उसको एक्सपैंड करते हैं तो JDK की एक फोल्डर आता है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे मेरे पास जब मैंने जावा को डाउनलोड किया था, तो उस जावा को डाउनलोड करने के बाद C ड्राइव में देखो आप प्रोग्राम फाइल्स में, ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, लेकिन आप फिर से देख लीजिए। जावा के अंदर ये JDK है। JDK के साथ ही हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट अवेलेबल होता है। तो मैंने आपको बताया था कि हमें पाथ सेट करना होता है, तो JDK के अंदर बिन है। बिन के अंदर हमारे पास देखिए जावा सी नाम की फाइल पड़ी हुई है। जावा सी ये कंपाइलर होता है मेरा, और इसी से हमारी फाइल प्रोग्राम्स जो होते हैं वो कंपाइल होते हैं। और ये हमारा जावा है, ये इंटरप्रेटर होता है। जब हम एग्जीक्यूट करते हैं कोई भी प्रोग्राम को, तो हमारा जो बाइट कोड होता है वो इस इंटरप्रेटर के थ्रू एग्जीक्यूट किया जाता है। जावा डॉक है जो डॉक्यूमेंटेशन करने के काम आता है। जावा H होती है जो कि आपको, अगर आपको हेडर फाइल्स बनानी होती है उसके काम में आता है।
और मेजरली यही दो चीजें हमारे को यूज करनी होती हैं फॉर आवर जावा प्रोग्राम. Java development kit is available where you install your Java, and JRE is also there. So in JRE also you will find different DLL files which is used to execute your programs. DLLs, dynamic link libraries. So these are the libraries, and some, if you see, there is a Java exe as well as the Java DLL is also available. Here you will find Java C also. Java C is the file, Java C. So it's actually not available. It is available in the JDK. So Java C is a compiler. It is available in JDK, and as Java as an interpreter, it is available in your JRE environment. So जब भी कभी आपको path set करना होता है तो इन दोनों folder का path set करना होता है, तो it's better कि आप environment variable के through अपना path set करें. इसकी मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है. एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू आपको अपने जावा का पाथ सेट करना है. अदरवाइज तो अगर आप इसका पाथ सेट करते हो जेडीके का, तो आपको जेआरई नहीं मिलेगी. अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर आप अपना पाथ सेट करते हो तो आपको आप एक ही पाथ सेट कर सकते हो. सेमीकोलन करके आप डिफरेंट मेंशन कर सकते हो, बट इट्स बेटर कि आप इसको एनवायरमेंट वेरिएबल के थ्रू ही सेट करें. तो नाउ अब आपको समझ आ गया होगा कि जेडीके में क्या क्या होता है. हमारे पास जेआरई होता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज अवेलेबल होती हैं और डेवलपमेंट टूल्स होते हैं, जैसे कि जावा सी और जावा. ये सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं. इन सब का कॉम्बिनेशन बन के हमारा जेडीके बनता है. So if we club these two files and then find JVM plus library, that is Java runtime environment, plus development tools, that completely is a JDK. So JDK is what? JRE means Java runtime environment plus development tool. This is our JDK. And what is JRE? If we explain this JRE, then we can say JVM plus library class. So Java runtime environment जो है वो Java virtual machine, which it consists of Java virtual machine and library classes. ये हमारा JRE बनता है. JRE plus some more development tools, ये सब मिलके हमारा JDK बनता है. तो JVM जो है वो हमारा, ये JVM के बारे में बात करें या हम JRE के बारे में बात करें, ये कॉम्बिनेशन में एक JDK है, जावा डेवलपमेंट किट है. अगर हम कंपाइलेशन प्रोसेस देखें तो कंपाइलेशन प्रोसेस में हमें क्या करना होता है. जैसे कि हम जावा का सोर्स कोड लिखते हैं, जैसे आपको मैंने बताया था कि हमारा जो सोर्स कोड होता है वो हमारा .java के नाम से सेव होता है. ये आपको पता है पहले से ही. तो जावा जो हमारा प्रोग्राम होता है वो सोर्स कोड होता है .java. उसको हमें कंपाइल करना होता है जावा सी से. ये हमारा कंपाइलर है. जावा सी से जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा, जैसे लेट्स से एग्जांपल है example.java, ये मेरा सोर्स कोड है. जब हम इसको जावा सी से कंपाइल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? example.class फाइल मिलती है. ये हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस खत्म हो जाता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी एरर्स आ रही हैं तो लिस्ट ऑफ एरर्स हमारे को मिलेंगे और उन लिस्ट ऑफ एरर्स को हमें मॉडिफाई करना है. मॉडिफाई करके हमें दोबारा से उसको कंपाइल करना है until unless your program will becomes error free. जैसे हमारी .class फाइल बनती है तो अब हमें क्या करना है? अब हमारे को रन टाइम एनवायरनमेंट चाहिए. ये तो कंपाइलेशन प्रोसेस हो गया, ये कंप्लीट हो गया. ये किसके थ्रू हुआ? जावा सी के थ्रू. जावा सी क्या है? एक टूल है. अब हमारे को क्या करना है? जब हमारा बाइट कोड क्रिएट हो जाता है तो हमें इसको लोड करना होता है हार्ड डिस्क से या किसी नेटवर्क डिवाइस से या किसी और सोर्स से अवेलेबल होता है. जैसे कि अगर आप एप्लीकेशन के बारे में बात करोगे तो ये हार्ड डिस्क से अवेलेबल होगा. एप्लेट के बारे में बात करोगे तो आपको नेटवर्क से मिलेगा, जैसे कि आप ब्राउजर के थ्रू उसको ले सकते हो. तो अगर आप एप्लीकेशन के बारे में बात करते हो तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे विंडोज 10 है या आप आईओएस के लिए काम करते हो तो आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो आपका प्रोवाइड करता है java.exe. उसी प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग java.exe हमारे को प्रोवाइड करती है रन टाइम एनवायरनमेंट. तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो भी JVM हमें प्रोवाइड करता है और नेटवर्क भी, जो ब्राउजर होता है वो भी हमें JVM प्रोवाइड करता है. जब तक हमारे पास JVM नहीं होगा तो हमारा जो रन टाइम एनवायरनमेंट होगा वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा. तो ऐसे java.exe जो होती है ये एक फाइल है, ये इंटरप्रेटर होती है और ये फाइल हमारे को JRE एज वेल एज JVM का काम प्रोवाइड करती है.
तो JVM में क्या होता क्या है, जो बाइट कोड बना वो बाइट कोड इस java.exe से इस पूरे प्रोसीजर में चला जाएगा। रन टाइम एनवायरनमेंट मिला, क्लास लोडर मीन्स जो भी हमने क्लास बनाई थी वो क्लास लोडर जो है उसको क्लास को लोड करेगा। उसके बाद बाइट कोड वेरीफायर होता है जो कि वेरीफाई करेगा कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहाँ पे कोई एरर्स तो नहीं है, वो वेरीफाई करेगा। और जो बाइट कोड हमारा दिया जा रहा है वो बाइट कोड उसी क्लास का है ना जो हमने क्लास लोडर के थ्रू लोड कराई है। उसके बाद हमारा जो इंटरप्रेटर है वो काम करता है। रन टाइम एनवायरनमेंट आपको मिलते जाता है जो कि हार्डवेयर से आपको प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर मींस लोअर लेवल पे जा लेवल पे जाके वो काम करता है। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसीजर रहता है टू एग्जीक्यूट आवर जावा program. So in another form, if you can see Java source code, Java development kit means Java compiler is provided by the Java development kit. Now the Java compiler compile the whole program, and when you make it error free, it convert it into the Java bytecode. This Java bytecode is being used for execution. So हार्डवेयर प्लेटफॉर्म देयर इज एक लेयर है जिसको हम हार्डवेयर के ऊपर एक लेयर होती है जिसको हम जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं, और उस जावा वर्चुअल मशीन के पास एक जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है। वो जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जस्ट इन टाइम एज द नेम इज इंडिकेटिंग, जैसे ही उसके पास कोई भी चीज आएगा, कोई भी वर्क आएगा, उस वर्क के अकॉर्डिंग वो उसको कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद आपका एग्जीक्यूशन शुरू करेगा। तो आपके पास तीन चीजें चाहिए आपको। एक ये तो हम आप जेवीएम को दे रहे हैं, जेवीएम हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, रन टाइम एनवायरनमेंट मींस जैसे ही बाइट कोड इसके पास आया, जस्ट इन टाइम कंपाइलर ने काम किया, जावा वर्चुअल मशीन जो है वो आपको रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगी और उसको एग्जीक्यूट करेगी। रन टाइम एनवायरनमेंट जैसे कि नाम ही बता रहे हैं, रन टाइम एनवायरनमेंट मतलब ये जब रन करते हैं हम प्रोग्राम को, उसका एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारा पूरा प्रोसीजर होता है। एंड ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जेडीके, जावा वर्चुअल मशीन, JVM and Java runtime environment. So there should not be any confusion. I hope आप लोगों को ये सब समझ आया होगा। अगर नहीं समझ में आया आप इसको दोबारा से देखें, आप कमेंट में मुझे बता भी सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया। आई विल ट्राई कि मैं दूसरी वीडियो एक बना के आप लोगों को समझा सकूं जो आपकी प्रॉब्लम्स होंगी। सो थैंक यू ऑल।